Good morning, students. Now, today we are going to go through ahead in our chapter that is staffing, and the topic will be recruitment. Okay, so what is recruitment? See, recruitment means inducing or attracting more and more candidates to apply for the vacant positions in the organization. In general words, recruitment means search for the candidate who can perform the vacant roles and inducing them to apply and come forward to filling the vacant roles. Okay, so what is recruitment? Recruitment is just a kind of process wherein we just come up with some good articles in the newspaper. Not article, it is a kind of invitation to the people who are looking for job. So it's called as vacancy or requirement column, you must have seen in the newspaper. So basically that is a kind of recruitment where we just try to come up with some good packages, good offerings, and attractive and challenging job positions, so that really attracts the people and they will be induced to apply for it. So this is the thing. Here no rejection will be made, so this is a positive process. Okay, now here are the sources of recruitment. So there are two sources, internal and external. So internal sources where you are not going to take the candidates from outside. You are going to look for your candidate inside your company. Okay, in external what happens? In external recruitment, definitely we are looking outside the boundaries of the companies. So the candidate will come from the outside the company, not from inside the company. Okay, so basically these are of two types. Now let us discuss this in detail. So the internal source of recruitment is what? So under internal source of recruitment, the vacant job positions are filled by inducing the existing employee of the organization. The vacant job positions are filled by using existing employee only and no outsiders. Means what they do in internal source, they are going to look for the employee inside the company, not outside the company. जो भी इंसान आएगा he will be coming from इनसाइड. ओके, हम उस इंसान को, उस व्यक्ति को कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? कंपनी के अंदर से ही सिलेक्ट करेंगे, बाहर से किसी को अपॉइंट नहीं करेंगे या उसको नहीं ढूंढेंगे, कंपनी के अंदर ढूंढेंगे. अब बेसिकली ऐसा कब होता है? जब कंपनी में, पूरी कंपनी में से फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स एम्प्लॉय हो सकते हैं, बट वैकेंसी जो आई है सिर्फ सॉरी 5 पीपल्स की आई है. इन केस ऑफ जस्ट 5 पीपल्स position vacancy निकालना, it is very wrong. So what they do, they will look for internal recruitment. They will try to promote the peoples from one position to the other position, or they will shift from one टीम टू दी अनदर टीम, एक टीम से दूसरी टीम में भेजना लोगों को. इस तरह से शफलिंग करके भी अरेंज किया जा सकता है. जहाँ पे कैपेसिटी ज़्यादा है वहाँ से अपन ने कम करके दूसरी जगह पे भेज दिया. तो दिस आर डन इनसाइड द कंपनी, ये कंपनी के अंदर हो रहा है. दिस इज हैपनिंग इनसाइड द कंपनी. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल सोर्स. आप बाहर नहीं जाते हो, इसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता, बिकॉज कंपनी के अंदर से ही हम एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं. ओके, तो चीप भी रहता है. ओके, एंड मोर कन्वीनियंट एक्चुअली. नाउ internal source of recruitment is very popular because it is economical, सस्ता है. it motivates the existing employers. सी व्हाट हैपन, जब लोगों को लगता है कि हमको इनसाइड से ही बिल्कुल हमको प्रमोशन कर दिया जाएगा, तो वो मोटिवेट होंगे. क्योंकि जब भी कोई जाता है छोड़ के, लाइक मैनेजर छोड़ के दूसरी कंपनी में जॉब करने गया, ओके, सो इफ द मैनेजर इज लिविंग देन डेफिनेटली then that particular position of manager will be occupied by some employee who will be selected internally. So he will feel motivated, उसको अच्छा लगेगा, वो मोटिवेट फील करेगा. ओके, देन थर्ड, लेस अमाउंट एंड स्पेंट ऑन ट्रेनिंग. कम ट्रेनिंग पे ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज ऑलरेडी वो एम्प्लॉय जो भी इंटरनल रिक्रूटमेंट के थ्रू आ रहा है, ही इज़ वेल अवेयर अबाउट द कंपनी, वो कंपनी के बारे में जानता है, तो उसको ज़्यादा ट्रेनिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, जैसे कि अगर कोई मैनेजर है, उसके अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा था, अब मैनेजर जॉब छोड़ के चला जा चुका है, तो उसकी पोजीशन कौन लेगा? वो एम्प्लॉय जिसको प्रमोट किया जाएगा. तो ऑलरेडी उसके अंदर काम करके थोड़ा तो सीख गया होगा, तो उसको बहुत सारा नया नया सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी trained and he already watched his boss working. So there is no problem in giving him promotions. Okay. Now fourth point, the employee already familiar with the rules and regulations. So that is the simple thing. The family, definitely that person who will be taken
एज अ सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, वो ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन को जानता है, तो इंटरनली ये भी प्रॉब्लम नहीं रहती है कि उसको क्या है रूल्स रेगुलेशन कंपनी के पता नहीं है, ऐसा नहीं है। सो इंटरनली आपको वो चीज़ पता रहती, क्योंकि इंटरनल एम्प्लॉय को पूरी जानकारी रहती है। Then improve performance of employee. The performance of employee will improve. Then through transfer from employees get training also in the form of job rotation. So as I told you, transfer भी होता है। So अगर transfer हो रहा है, say for example एक इंसान दूसरी टीम से आ रहा है, तो हो सकता है कि वो वहाँ पर कुछ और काम कर रहा हो, जैसे कि बैंक में कहीं पे किसी दूसरी ब्रांच में कहीं वैकेंसी है, ओके। और हो सकता है वो व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहा हो लोन डिपार्टमेंट में, उसको वहाँ पे शिफ्ट करा, उसको भेज दिया एक कैशियर के जॉब पे, तो कैशियर की ट्रेनिंग उसको करानी पड़ेगी, तो जॉब रोटेशन के थ्रू उसकी ट्रेनिंग कराई जा सकती है और वो जल्दी इसको सीख जाएगा। ये तब किया जाता है जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, बिकॉज उस इंसान ने देखा नहीं वो दूसरा काम क्या है, तो ट्रांसफ़र के केस में हमको तो इसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देन लास्ट इज थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉयज कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट्स। तो सेम पॉइंट इज देयर, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि अगर बहुत सारा ज़्यादा कैपेसिटी है किसी टीम में, मतलब कि जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी एक दो जने एक्स्ट्रा लग रहे हैं और काम कम है, तो वहाँ से एक जना शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ होती है इंटरनल रिक्रूटमेंट में, ओके। ट्रांसफ़र करके और उसको सिखा के ट्रेनिंग दे के उसको नई टीम में सेंड कर दिया जाता है, ओके। So these are some very popular advantages of this internal sources. Now drawbacks. Drawbacks are also there. No fresh or new idea will come to the company. कोई भी fresh idea नहीं आने वाला company का. There will be limited choice. Limited choice रहेगी because you are looking for the employee inside the company only and not outside. हम कंपनी के अंदर से ही सर्च कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी लिमिटेड सोर्स है कंपनी के उन्हीं को आप चेक कर रहे हो, तो कुछ नया फ्रेश या आइडिया आपको लाने वाला कोई बाहर का एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, कंपनी के अंदर मिलता है, तो एक लिमिटेड चॉइस दिखती है। देन थर्ड पॉइंट, नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। नई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी है तो उसके लिए ये चीज़ सुटेबल नहीं है कि आप इंटरनली देखो, बिकॉज नई कंपनी को बाहर से अच्छे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। द थिंग इज दैट सो दे विल ऑलवेज कम अप विद सम वैकेंसीज, वो रिक्रूटमेंट करेंगे बाहर से ही करेंगे, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करेंगे, नॉट इंटरनल, ओके। देन frequent transfer may reduce the productivity of employee, and now this point comes, see अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है एम्प्लॉय का, तो वो क्या होगा उसकी वजह से, he will not going to feel motivated, because continuous transfer से क्या होता है, ओके अगर आप कंटिन्यूस ट्रांसफ़र करोगे तो कभी भी एम्प्लॉय क्या करेगा, मोटिवेट नहीं होता है, क्योंकि इंटरनल रिक्रूटमेंट में अगर कोई ऑलरेडी सेट हो गया जॉब पे, उसको अच्छा लग रहा है, एंड सपोज यू आर ट्रांसफरिंग हिम फ्रॉम वन टीम टू दी अदर टीम, व्हाट विल हैपन, ही विल नॉट फील मोटिवेटेड, उसको अच्छा नहीं लगता है, ओके एम्प्लॉय को। देन under the internal recruitment, following methods of recruitment are used. So what are the methods of internal recruitment? The first is transfer. कि transfer means what? The transfer means simply एक इंसान को उठा के हमने कहीं से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके भेज दिया, एक टीम से दूसरी टीम में, बैंक में एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भेज दिया, क्योंकि उस ब्रांच में ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, ऐसा लगा हमको, तो कैपेसिटी दिखती थी वहाँ, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो एक दो को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे ट्रांसफ़र के थ्रू आप देखते हो एक तरीका ये रहता है। So transfer means shifting of employee from one job position to the other at the same level of authority. Generally, with the transfer there is no change in the compensation level and authority level. This is the main thing. जब भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो compensation मतलब सैलरी में कोई ज़्यादा चेंज, सैलरी में चेंज नहीं आता है, और कोई भी अथॉरिटी या पावर लेवल पे भी कोई चेंज नहीं आता है। सपोज जिस लेवल पे मैनेजर अगर कोई छोड़ के गया हुआ है, तो बेसिकली वहाँ पर अगर किसी को ट्रांसफ़र करना है तो मैनेजर जो जहाँ पे दूसरी जगह काम कर रहा है उसी को ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ पे, तो ट्रांसफ़र सेम लेवल की पोजीशंस पे हो जाते हैं, ओके। तो सडन कॉल आ जाता है कि वहाँ से दूसरे मैनेजर को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और इस तरह से वहाँ पर उस वैकेंट पोजीशन को वो पर्टिकुलर मैनेजर फिल कर देगा। तो दिस इज़ द थिंग ट्रांसफ़र। So this is the first thing under internal recruitment. Then promotions is another thing. So promotion refers to the shifting of employee from one job position to the another with the higher level of authority. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी, यानी कि हाई लेवल मतलब आपके पास ज़्यादा पावर आ रही है, क्योंकि अगर आप मैनेजर है आपका वो जॉब छोड़ के चला गया, और अगर आपको मैनेजर बना दिया जाए, तो आपकी पोजीशन जो थी पहले एक लोअर लेवल पे थी, अब वो आप एक कदम आगे बढ़ गए और आप मैनेजर बन गए हो, तो आपको पास में पावर आ गया, अथॉरिटी आ गया। तो दैट इज़ द थिंग, यहाँ पे प्रमोशन में आपके पास अथॉरिटी पावर आता है, क्योंकि आप इसमें अपवर्ड मूव करते हो हायरार्की में, ओके।
In promotion, the authority level, the rank, responsibility of employee and prestige improves और increases. ओके, तो यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय रहता है उसका रुतबा, उसका एक इमेज इम्प्रूव हो जाता है। यहाँ पर जब भी प्रमोशन होता है तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग कि एम्प्लॉय को लगता है कि रियली आई एम वर्थ, मैं कुछ हूँ इस कंपनी में, क्योंकि मुझे प्रमोट किया गया इतने सारे लोगों में से। तो दैट अगेन दैट थिंग कम्स नॉट अलोन, सिर्फ ऐसा नहीं कि पावर दे दिया, रैंक भी मिलता है मैनेजर का, और फिर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत सारी आ जाती है बिकॉज यू आर अ मैनेजर नाउ। तो इस तरह से प्रमोशंस दिए जाते हैं। देन फॉर एग्जाम्पल यू कैन से प्रमोशन ऑफ अ क्लर्क टू द अकाउंटेंट पोस्ट। सो क्लर्क से आपको अकाउंटेंट मैनेजर बना दिया जाए, अकाउंट की पोस्ट दे दी जाए, लाइक दैट इट विल बी। देन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। सो व्हाट आर एक्सटर्नल सोर्स? व्हेन द कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इनवाइटेड to fill up the vacant job position, it is known as external recruitment. In other words, when the organization meets its manpower requirement from outside the organization, then it's the external recruitment. See what here happening, क्या हो रहा है यहाँ पर, कंपनी अपने कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ को नहीं ढूंढा जा रहा है, बाहर जाके ढूंढा जा रहा है। अब उसके लिए क्या तरीके रह सकते हैं? कंपनी अपनी वेबसाइट पे वैकेंसीज निकाल सकती है, न्यूज़पेपर में वैकेंसीज निकाल सकती है। ओके, सो ऑल दिस वेज। और ये भी हो सकता है कैंपस, मैनी टाइम यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, कैंपस सिलेक्शन होता है। तो कई बार स्टूडेंट को कैंपस सिलेक्शन, तो कंपनी बाहर जाके कॉलेजेस में विजिट करती है, वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करती है और इनको सिलेक्ट करती है गुड कैंडिडेट्स। So they are simply hiring good candidates because what happens when you look outside, you get fresh talent, of course. Okay, new things, new ideas, innovative ideas will come to you. So it is always good to go outside the lines of the company and recruit some good peoples. Okay, now then here we can say that the advantages of external recruitment are fresh talent, you get fresh talent, wider choice because this is not a limited area, you're already going outside the company, so you will be having a wide area of choice. Then qualified personnel, definitely after, because you are looking at the external recruitment, बाहर से आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको क्वालिफाइड लोग ही चाहिए रहेंगे, ट्रेंड पीपल्स चाहिए रहेंगे वहाँ पर, तो हम ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा है? सी, बाहर जब कंपनी ढूंढती है कैंडिडेट्स को तो उनको उनके पास में दो तरह के कैंडिडेट्स अवेलेबल रहते हैं। फ्रेशर जिसको कुछ नहीं आता, मतलब कंपनी में कभी काम नहीं किया, नॉलेज है बट कंपनी में कभी उसका एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, द सेकंड थिंग इज दैट जिसको नॉलेज भी होगा और एक्सपीरियंस भी होगा, तो एक्सपीरियंस इंसान भी वहाँ पर मिल सकता है। तो क्वालिफाइड पर्सन वहाँ पे मिल सकता है आपको जैसा आपको चाहिए। देन लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, जो भी करंट नॉलेज चल रहा होगा मार्केट में, नए नए सॉफ्टवेयर आ गए, न्यू लर्निंग्स आ गई, तो उस अपडेटेड नॉलेज वाला कैंडिडेट आपको मिल जाता है। यू गेट अ कैंडिडेट हु इज अपडेटेड इन द नॉलेज। देन competitive spirit means what? See, when external recruitment happens, all these outsiders join the organization, so this develops a competitive sprint in the existing employee of the organization. See, कंपनी के अंदर जो लोग बैठे हैं, जब उनको पता चलता है बाहर से रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो वो compete करने की फिर कोशिश करेंगे, वो लोग भी, उनके एक तरह से रेस लग जाएगी सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में कि कौन बेहतर है, क्योंकि जो भी बाहर से सिलेक्ट आएगा और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय भी रहेंगे, सो दे विल बी competing with each other। वो compete करेंगे नए वालों के साथ में, जो एग्जिस्टिंग है, पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, वो compete करने की या कंपटीशन करने की भावना रखेंगे। सो दे विल बी हैविंग फीलिंग ऑफ दिस competitiveness inside them, which is good for the company actually। जब भी कंपटीशन होता है तो कंपनी के लिए ही फायदा होता है। ओके, देन डीमेरिट्स क्या है इसके? द मोरल ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय गोज डाउन, मोरल डाउन हो जाता है, मनोबल गिर जाता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का, बिकॉज अगर किसी को प्रमोशन मिलने वाला है और अगर आपको पता चले कि उस पर्टिकुलर मैनेजर की पोजीशन पे बाहर से किसी को मैनेजर बनाया जाएगा, तो व्हाट हैपन, कि आप उसको लोग आप कैसे फील करोगे? अच्छा फील नहीं होगा कि बाहर से किसी और को बना दिया गया। सो वी विल नॉट लाइक इट। सो after this, the second, the new employees may not adjust in the rules and regulation of the organization। Okay, so what happens then? Of course more chances of turnover will be there। I told you already about turnover, एम्प्लॉय छोड़ के जाता है ना कंपनी, उसको बोलते हैं टर्नओवर। तो अगर वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे नहीं लगते, बिकॉज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को रूल रेगुलेशन समझ में आते हैं, नए वाले को अगर रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे नहीं लगते, इफ ही इज सिंपली डिसलाइकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, व्हाट विल हैपन? वो कंपनी छोड़कर जा सकता है फिर। तो दैट इज द डिसएडवांटेजेस। ओके, देन इट इज एक्सपेंसिव।
to invite the outsider to apply for the job. See, whenever you are going outside the boundaries of the company looking for some external recruitment, what happens, यहाँ पर external recruitment में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो यहाँ पर एक्सपेंसिव पड़ता है, ये थोड़ा महंगा पड़ता है कंपनी को, उसमें पैसा बहुत खर्च होता है। ओके, लाइक प्लेसमेंट एजेंसीज, उनको हायर करना, उनकी सर्विसेज, सो कंपनी विल बी पेइंग for such kind of thing. Campus drive or campus recruitment will also be, if they are doing, again the expenses will be there. Advertisement in the newspaper, all these website and all, so all these magazine everywhere, so it will incur some expenditures. Okay, now lengthy process, this is the lengthy process. External recruitment, it's not a kind of thing which can be done immediately, it takes some time, because recruitment will come, then people will be applying, so resume आएंगे उनके, biodatas, but not biodata, actually it is called as resume. Okay, so resume will come to the companies, and then they are going to select over it. So it is just like, it's a lengthy process, not a one day process, it takes time. So what are the common methods? The direct recruitment is there. Direct recruitment means what? Sometimes the organization pass notices at the gate of the office, factory or workshop stating the vacant job position. The people who are interested in the job walk in the for the interview. So it will be like a board. In the earlier days, the people used to put the board outside, like vacancies, have in hiring the workers, something like that. So it means what, कि कंपनी में वैकेंसी चल रही है, वॉक इन ड्राइव लिखा रहता है, तो वॉक इन ड्राइव मीन्स क्या होता है, कंपनी इज लुकिंग फॉर गुड कैंडिडेट, सो वॉक इन ड्राइव इज देयर, so that is called as direct recruitment. कंपनी के फैक्ट्री गेट के ऊपर लिख देते थे, बोर्ड टांग दिया करते थे, तो उसके देखकर जो भी जा रहा होगा तो उसमें फिर अप्लाई करता था फिर वो। देन कैजुअल कॉलर्स, who are casual callers, generally the large organization maintain an application file in which they keep the pending application which the job seeker leave with the reception. Sometimes the application of suitable candidates were not selected in the previous year selection process are also kept in the file. What happens, यहाँ पे क्या लिखा है, कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं, सपोज आप इंटरव्यू देने के लिए गए, अब वहाँ पर कंपनी में आपने अपना रेज्यूमे सबमिट कर दिया, तो वो कंपनी क्या करती है, कंपनी उस फाइल को अपने पास में, एक फाइल रहती है उनके पास में, वेयर दे कीप द डेटा ऑफ सच काइंड ऑफ एम्प्लॉय, तो उनके एम्प्लॉयज़ के डेटा को वो कंपनी रखती है अपने पास में, और बाद में क्या करती है, उनको कॉल करती है, उस डेटाबेस पे कॉल करती है, तो उसको बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। ओके, तो वहाँ पे रेज्यूमे सबमिट कर चुके हैं वो लोग, जॉब हो या ना हो, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि बिल्कुल अप्लाई किया इंटरव्यू हो ही जाएगा। कई बार वो सिर्फ रेज्यूमे ले लेते हैं और आपको फिर कॉल नहीं करते हैं वो। तो ऐसा नहीं कि वो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया आपका रेज्यूमे, वो उनके डेटाबेस में चला जाता है, और जब भी उनको रिक्वायरमेंट रहेगी वो करेंगे। तो आप बोलेंगे, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अचानक से फिर ऐसा क्यों है कि अगर था ही नहीं वैकेंसी, तो फिर ये क्यों चल रहा है स्टाफिंग का प्रोसेस। सी, स्टाफिंग मैनेजमेंट का एक पार्ट, एक फंक्शन है, कंटिन्यूसली परफॉर्म किया जाता है, चाहे वैकेंसी हो चाहे ना हो। आप रेज्यूमे तो अपना देकर आ ही सकते हो, इट विल बी देयर इन द डेटाबेस। ओके, नाउ मीडिया एडवर्टाइजिंग, इट्स अ वेरी सिंपल सोर्स। मीडिया एडवर्टाइजमेंट, मीडिया मतलब कि आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह या फिर टीवी चैनल्स, इसमें हम वैकेंसीज निकाल सकते हैं, उससे वैकेंट जॉब पोजीशन के बारे में पता चल जाता है। तो ये सबसे वाइडली यूज्ड वे रहता है एक तरह से जॉब को दिखाने का, फॉर द वैकेंट पोजीशन। सो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स करती हैं अलग अलग जगह पे जाके। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, फॉर द जॉब अकाउंटेंट द एडवर्टाइजमेंट कैन बी गिवन फॉर द in chartered accountant general and unskilled and lower rank jobs in the advertisement can be given in the लोकल न्यूज़पेपर। सी, अगर कुछ हाई लेवल का पोस्ट है, हाई लेवल का लाइक चार्टेड अकाउंटेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट, तो इसके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहता है, तो उसमें कोई बिजनेस मैगजीन जिसमें कि आप ये वैकेंसीज दे सकते हो, वो वहाँ पर दिखा जा सकता है। या फिर कंपनीज इसके लिए कोशिश करती हैं कि कहीं से प्लेसमेंट एजेंसीज को कांटेक्ट करें, वहाँ से हो सकता है। वैसे अगर कुछ नॉर्मल एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर में वैकेंसीज या वेबसाइट पे ही वैकेंसीज दिखाई जा सकती हैं। ओके, नाउ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार कार्यालय को बोलते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रहते हैं, एक तरह से गवर्नमेंट की कंसल्टेंसी है, ठीक है, जो कि जॉब दिलाने का काम करती है। सो इट इज़ लाइक ए मिडिल मैन बिटवीन द जॉब सीकर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये
जॉब सीकर्स यानी कि हम लोग जैसे कि जॉब ढूंढ रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी, तो बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। वो क्या करता है, आपका नाम रजिस्टर करता है, आपका रेज्यूमे लेकर रख लेता है, और जब भी कोई अच्छी वैकेंसीज आती है ही विल लेट यू नो, वो आपको बता देंगे, और फिर आप जाकर वहाँ पर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। और आपको अगर कंपनी आपको अच्छे लगते हैं, आप उनको प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट दिखते हैं, तो फिर वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दैट इज हाउ दे सिलेक्ट। ओके, now placement agencies and management consultant, now this is not related to the government, ये गवर्नमेंट वाला नहीं है, प्राइवेट रहता है। कुछ प्राइवेट फर्म्स भी रहती है जो कि प्लेसमेंट एजेंसीज का काम करती है, जिनके पास आप जाके अपना नेम रजिस्टर कर सकते हो अलॉन्ग विथ योर रेज्यूमे, वहाँ पे रेज्यूमे सबमिट करते हैं। दे चार्ज अ नॉमिनल फी, थोड़ी सी फीस चार्ज करते हैं, 100 रुपीज़ 200, कुछ कंपनीज फ्री ऑफ कॉस्ट भी करती हैं। और आपको फिर जब भी कोई वैकेंसी आएगी, they are going to tell you about that particular vacancy, and then you can go in that particular at a particular date, जो कि आपको प्लेसमेंट कंपनीज ही बताती हैं कि किस पर्टिकुलर डेट में आपको वहाँ पर जाना है। आप वहाँ पर जाओ, आपका इंटरव्यू हो जाएगा कंपनी में और उसके बाद आप वहाँ पर हो सकता है सिलेक्ट हो जाओ। तो दिस इज द जॉब ऑफ प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। Then campus recruitment. You all are well aware about this. Campus recruitment कहाँ पर होता है? These companies, see many good companies, they don't waste time. They will go directly to the IIMs or IITs or good colleges, top B schools, and what they look for good candidates, cream candidates, who are freshers, but they are all the freshers are with fresh talent. Okay, तो जो fresh talent वाला इंसान रहता है वो आपको campus recruitment के थ्रू लिया जा सकता है, और वो बहुत ही क्रीम लेयर को ले जाते हैं, उनको अच्छे पैकेजेस देते हैं, ऑफर करते हैं, और वहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं। समटाइम द कंपनीज ऑल्सो कम फॉर नॉट लाइक क्रीम लेयर्स, मतलब सिर्फ क्रीम लेयर नहीं, दूसरे टाइप के एम्प्लॉयज़ के लिए भी आते हैं, तो उनको भी सिलेक्ट किया जाता है। इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ क्रीम लेयर्स को ही ले आते हैं, दूसरों को भी ले जाते हैं। तो कैंपस रिक्रूटमेंट में कॉलेज में आती हैं कंपनीज आती हैं, और वहाँ पर इंटरव्यूज़ ऑर्गेनाइज करते हैं उनके एचआर सेल वाले, ह्यूमन रिसोर्स को जो सिलेक्ट करते हैं, उनका जो एचआर सेल रहता है, मतलब एचआर का जो टीम रहता है वो आता है वहाँ पे, और वो लोग सिलेक्ट करते हैं इंटरव्यू लेकर। ठीक है, दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। So here the senior manager of the organizations visit various colleges, institutes to get fresh graduates from the latest technological know-how. This type of recruitment is more common for MBAs etc. Okay, so MBA colleges वगैरह IIMs में जा जाके वो लोग लेते हैं। Then recommendations from present employees. समटाइम्स दिस ऑल्सो हैपन्स कि रिकमेंडेशन लिए जाते हैं प्रेजेंट एम्प्लॉय से। सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, या सिटिंग इन अ कंपनी एंड यू आर वर्किंग ओवर देयर, तो वो क्या होता है कि वो आपसे पूछते हैं कि अगर किसी के पास कोई फ्रेंड हो जो कि जॉब करना चाहता है, हमारे साथ ज्वाइन होना चाहता है कंपनी में, तो प्लीज़ उसका रेज्यूमे कंपनी में सबमिट कर दें, या फिर हमको ला कर दे दें, तो हम उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर देंगे। तो उसको बोलते हैं रिकमेंडेशंस मांगना प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ से, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनसे मांगना, उनसे आपको सजेशंस मिल सकते हैं। हो सकता है उनके फ्रेंड्स जो कहीं और काम कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस है, वो कैंडिडेट्स भी आ सकते हैं, बट ये कैंडिडेट्स बाहर से आएंगे, दे विल कम फ्रॉम आउटसाइड, तो डेफिनेटली ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ही होता है। ओके, नाउ हियर मैनी फर्म्स एनकरेज द एम्प्लॉयज टू recommend द नेम्स ऑफ द रिलेटिव्स, फ्रेंड एक्सेट्रा। तो कोई किसी को भी रिलेटिव हो गया, फ्रेंड हो गया, अब आप किसको बुला रहे हो दैट डिपेंड्स। ओके, इफ यू आर कॉलिंग योर फ्रेंड और योर रिलेटिव डजेंट मैटर, बट स्टिल it is just like a recommendation from you. Okay, that's it. Then लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ना वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये फैक्ट्री में यूज़ होते हैं। फैक्ट्री में जब बहुत सारे आपको लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ ऐसे लोग रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, जो कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, क्योंकि कंपनी में अगर बहुत सारे अचानक से लेबर्स की रिक्वायरमेंट है, लाइक 100 लेबर्स 200 लेबर्स, तो वो इमीडिएटली वहाँ पर किसी पर्सन को कॉन्टैक्ट करते हैं, और उसको हम बोलते हैं जॉबर्स। ओके, जॉबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है, are the people who keep in touch with the labor and the villages and the rural areas. Whenever there is a vacancy or recruitment of labor in the factory on the construction site, they bring the labor from the villages and supply to the businessmen. इनका काम क्या रहता है? They simply bring those people from those villages, because all those people are in contact, all those workers who want to work like a labor are in contact with this particular person. तो उनका contact रहता है, उस contact की मदद से वो बहुत सारे लेबर्स आपको अवेल करा सकते हैं। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस, तो इनको भी कॉन्टेक्ट कराया जा सकता है। दे ऑल्सो चार्ज सम मनी फ्रॉम द कंपनी। देन advertising on televisions. Okay, advertising, now it's a easy thing to understand. Now this is a trend of external recruitment or telecast of the various channels regarding vacant job positions.
the telecast requirement of the job along with the qualification necessary to apply. Now you will not see these things very often. ये आपको चैनल्स पे कम देखने को मिलता है आजकल, ऐसा नहीं था पहले, कभी देखने को मिलता था. राइट नाउ इंटरनेट इज़ द ट्रेंड जहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, बट टेलीविजन्स पे भी आता था. और अगर लगता है कंपनी को कि बताना चाहिए तो लोकल टीवी न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा सकता है कि कहीं पर वैकेंसी है. इट इज़ अप टू द विल ऑफ द कंपनी कि वो क्या करना चाहती है. देन वेब पब्लिशिंग, दिस इज़ द वाइडली यूज वन टुडे. सो क्या होता है यहाँ पर, वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट पे वो सारी इंफॉर्मेशन, जॉब पोजीशंस अलोंग विद द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या काम रहेगा, कैसे रहेगा, कब होंगे इंटरव्यूज़ वगैरह, सब कुछ इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे प्रोवाइड कर देते हैं. सो द कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड दे कैन विजिट द वेबसाइट, दे कैन अप्लाई थ्रू दिस वेबसाइट, और दे कैन जस्ट सबमिट देयर रेज्यूमे ऑन द ईमेल ऑफ द कंपनी. ओके, कंपनी की ईमेल पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे. और इफ़ दे वांट टू कम एंड गिव दैट रेज्यूमे पर्सनली, तो पर्सनली भी वो रेज्यूमे जाके सबमिट कर सकते हैं. देन फैक्ट्री गेट, फैक्ट्री गेट क्या रहता है, फैक्ट्री गेट पे भी कभी कभी रिक्रूटमेंट दिखता है. समटाइम अ नंबर ऑफ जॉब सीकर इंक्वायर एट द फैक्ट्री गेट अबाउट द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द वर्कशॉप और इन द फैक्ट्री. तो यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि फैक्ट्री गेट पर भी जाके पूछते हैं कि क्या कोई वैकेंसी है क्या, तो उसको फैक्ट्री गेट के थ्रू भी कई बार वो लोग अप्लाई करते हैं. तो ड्यूरिंग द सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट टाइम्स मैनी जॉब सीकर असेंबल एट द फैक्ट्री गेट आफ्टर द सर्विसेज इन द एंड ऑफर द सर्विसेज इन द फैक्ट्री. जब बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा होता है, तो जैसे कि लेबर्स के लिए कुछ ज़्यादा जॉब नहीं रहती, तो भीड़ आके खड़ी हो जाती है कंपनी के फैक्ट्री गेट के बाहर में, क्या कुछ जॉब अवेलेबल हो सकता है. तो इन दैट केस कंपनी कोशिश करती है कि अगर किसी को जॉब मिल सकता है तो वो अवेलेबल कराई जा सकता है. पर ये कोई बहुत हाई फाई जॉब नहीं रहती है. इट्स अ सिंपल काइंड ऑफ जॉब, लाइक हियर यू कैन से द एग्जांपल लाइक स्वीपर्स, प्यून्स, मशीन ऑपरेटर्स, लाइक दिस सिंपल काइंड ऑफ पोस्ट देयर विल बी. तो कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं आ जाती है. नाउ दिस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. सो इंटरनल वी ऑलरेडी नो, जहाँ पे कंपनी अंदर से सिलेक्ट कर रही है. एक्सटर्नल, कंपनी बाहर जाके सिलेक्ट कर रही है. देन टाइम, इसमें टाइम कम लगता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है. देन इकोनॉमी मतलब सस्ता होना. तो कौन सा सस्ता रहता है, इंटरनल इज चीप, एक्सटर्नल इट कॉस्टली. ओके. देन क्वालिटी, यहाँ पर तो लिमिटेड चॉइस मिल रही है तो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी नहीं. एक्सटर्नल में आपको थोड़ा क्वालिटी मिल सकता है, ठीक है, तो वाइडर चॉइस रहती है, क्वालिटी भी मिल जाएगा. नाउ मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, इंटरनल में क्या होगा, मोरल जो रहता है एम्प्लॉयज़ का, हो सकता है कि वो थोड़ा सा बूस्ट अप रहता है, क्योंकि इंटरनली जब आप किसी को प्रमोट करते हो तो उसको अच्छा लगता है, उसका मोरल, मनोबल बढ़ जाता है. इन हियर इन एक्सटर्नल द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय विल गो डाउन, उनका मोरल डाउन जाता है. किसमें, एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के केस में. ओके. नाउ सिलेक्शन. ओके. सो सिलेक्शन इज व्हाट, इट्स अ बेसिकली अ प्रोसेस. सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जहाँ पर हम रिजेक्शन मारते हैं लोगों को और सिलेक्ट करते हैं एक बेस्ट एम्प्लॉय को बहुत सारों में से. तो सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज द डिस्कवरिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द पोजीशन इन द कंपनी. सो यहाँ पर हम सबसे बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं कंपनी की उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए, ठीक है. The selection process is as the end result of the recruitment function. Organization receive large number of applications, and selection process begins at this stage by screening the applications. In selection, the number of the rejected applicants is generally more than the selected candidates. That is why selection is a negative process. As I told earlier also in the previous video that this is negative process. Why this is a negative process? Because यहाँ पर हम reject करेंगे, we are going to reject some of the people, not some, actually बहुत सारों को reject किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमको अगर सिर्फ 100 पीपल्स की ज़रूरत है और रेज्यूमे आ गए 5000 के, बट यू नीड जस्ट 100 पीपल, सो यू आर गोइंग टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ 4900 पीपल. सो दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू डू. तो यहाँ पर इसलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं. पॉजिटिव कौन सी थी, रिक्रूटमेंट, इससे पहले वाली. तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, ये ऑब्जेक्टिव में आता है. देन प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, अभी किस तरह से किस स्टेजेस में इसको लिया जाता है. तो सबसे पहली चीज़ होती है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो एचआर का जो एक
पर्सन आएगा, वो आपका राउंड लेगा और वो आपको चेक करता है। किस बेसिस पे चेक करेगा आपको? कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है वगैरह। अगर आपको वो आपको जज करेगा, ही विल जज यू दैट इफ, एंड इफ ही सीज दैट योर कम्युनिकेशन इज़ नॉट गुड, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, तो आपको वहीं पे रिजेक्ट कर देगा। आगे के टेस्ट वगैरह जो देने पड़ते हैं इंटरव्यू के बाद, वो आपको नहीं देने देगा, वो आपको रिजेक्ट कर देगा वहीं पे। जो कैंडिडेट सेकंड राउंड में जाते हैं एक्चुअली, वो उससे फ़िल्टर होकर जा रहे हैं एक्चुअली। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एचआर का कोई भी जनरल पर्सन आके करता है, सिर्फ नॉर्मल बातें करता है, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, व्हाट आर योर आइडियाज़, और व्हाट आर योर आइडियाज़, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस कंपनी। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस वो पूछता है, एंड सिंपली ही जस्ट चेक द कम्युनिकेशन। ओके, देन सिलेक्शन टेस्ट। एक बार अगर वहाँ से पास हो गए तो आपका टेस्ट होगा। अब टेस्ट कौन कौन से टाइप के होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ए आईक्यू टेस्ट। सो यहाँ पर क्या रहता है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इट्स यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस आईक्यू टेस्ट होता है, और वो चेक करते हैं कि आपका इंटेलिजेंस कोटेंट कैसा है, कितने जल्दी आप किसी चीज़ को पकड़ते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का स्किल्स अच्छा है। देन सेकंड इज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या रहता है, इसमें अलग अलग मैथ्स के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग वाले क्वेश्चन। तो इससे क्या होता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखते हैं वो लोग, कि कितना क्विकली आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर इसमें स्कोर अच्छा है, तो आप कंपनी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको बहुत क्विकली सॉल्व कर पाओगे। तो दिस इज बेसिकली द टेस्ट कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब इन द कैंडिडेट्स। तो उनको ये भी पता चल जाता है, जो कि व्यक्ति इतना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में अच्छा है, तो जल्दी से जल्दी किसी चीज़ को सीख लेगा। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में स्कोर करना बहुत ज़रूरी रहता है। ओके, इन केस ऑफ गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो यही टेस्ट लेते हैं वो भी। और वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि आप जल्दी से जल्दी सीखोगे नए तरीकों को, तो वो आपको ये टेस्ट ज़रूर देते हैं। देन पर्सनालिटी टेस्ट, यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। सो दिस टेस्ट रिलेट टू द इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। ओके, यहाँ पर आपको पर्सनल टेस्ट में आपका ह्यूमन बिहेवियर कैसा है वो सब चेक करेंगे, आपका इंटेलिजेंस, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए जॉब के प्रति, या फिर आप में वो चीज़ फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि बाकियों के लिए आप प्रॉब्लम बन जाओ एम्प्लॉयज़ के लिए। तो दैट इज़ द थिंग, सो दे विल चेक दिस पर्सनैलिटी ऑल्सो। So this psychological test help to find out the approach of the candidates, whether candidates have positive or negative approach, and how many initiatives he will be taking while performing the job. So वो देखेंगे, वहाँ पे चेक करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कितना ज़्यादा energetic हो, like they can simply ask you कि how do you see your future in the company, like a manager or a vice president, क्या सोचते हो। तो वो चेक करते हैं कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है। एंड इफ़ यू से कि सर मैं तो इसी पोजीशन पे खुश हूँ जिस पोजीशन पे बैठा हूँ, तो देखते हैं फ्यूचर उस पर कि ये तो ऐसा है एम्प्लॉय की, तो अपना बस एक सेट जॉब चाहता है, और फ्यूचर में कुछ भी वो आपको ज़्यादा कर मैनेजर की जो पोजीशन रहती है उसको निभा नहीं पाएगा। सो दिस इज़ द थिंग दे विल चेक, और फिर आपको रिजेक्ट कर लेंगे वो लोग। तो ये चीज़ रहती है, उनको बोलना चाहिए कि आई एम लुकिंग, सिंपली लुकिंग टू गेट सम मोर चैलेंजिंग position in the future, like I want to become a manager in your company, so that is the thing which you should say, वो कहना चाहिए वहाँ पर। तो ये चीज़ होती है आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने वाली। सो this is the thing. Then trade test. What is trade test? This test is conducted to check the existing skills of an individual. It helps to find the level of knowledge and proficiency in the area of profession and technical training. So see, अगर आप किसी ऐसी चीज़ में जा रहे हो जहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, सपोज यू आर वर्किंग फॉर इन्फोसिस, तो चेक करेंगे आपकी विजुअल बेसिक की लैंग्वेज कैसी है, तो उसके लिए एक ट्रेड टेस्ट होगा, और उसमें आपको स्कोर करना ज़रूरी रहता है। वो चेक करता है आपका टेक्निकल नॉलेज, कि रियली नॉलेज है कि नहीं, आपको कुछ आपको आता भी है कि नहीं। So they are simply going to check that. Like if in case of financial service, they are going to check your capital market knowledge by the help of this test, so that they will come to know that कितना आपको आता है, आप कितने पानी में है। That is the thing. So that is trade test where they are going to check your technical knowledge. आपको visual basic language, computer language से related हो सकता है, या फिर आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड हो सकता है, मे बी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड हो सकता है, यूएसए या अमेरिका के कैपिटल मार्केट से रिलेटेड हो सकता है। इट इज़ अप टू द टाइप ऑफ जॉब विच यू आर अप्लाइंग। देन इंटरेस्ट टेस्ट। Now this test is conducted to find out the type of job in which candidate has more interest, as well as the people have fascination for the jobs and then others. Now basically this type of test is what, where they will check the interest, like आपका किस जॉब में इंटरेस्ट है। अब फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें होती है, अब वहाँ पे कैपिटल मार्केट है, अकाउंट से रिलेटेड वर्क भी है, तो वो आपसे
टेस्ट के थ्रू पता करेंगे आपको कि किस तरह की जॉब आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आप किस तरह का जॉब कर पाओगे। तो बेसिकली इसके लिए टेस्ट से ज़्यादा आजकल इसको कैंसिल कर दिया जाता है, ये टेस्ट नहीं होता है। वो बेसिकली आपसे पूछ लेते हैं कि किस तरह का जॉब आप चाहते हो। तो अगर आपको उस तरह का जॉब चाहिए तो आप उनको बता सकते हो एचआर को कि हम एक्चुअली लुकिंग फॉर दिस एसेट मैनेजमेंट सर्विस और कैपिटल मार्केट टाइप ऑफ जॉब। आई डोंट वांट टू गो इनटू अकाउंटिंग। और अगर अकाउंटिंग अच्छा लगता है तो टेल देम कि अकाउंटिंग अच्छा लगता है, नहीं तो फिर वो आपको दूसरी चीज़ों में भेजेंगे। तो दैट इज़ द थिंग, व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू लाइक, यू विल हैव टू टेल देम। सो उसके लिए टेस्ट भी होता है कि आपको क्या पसंद है, किस चीज़ों को। तो उसके अकॉर्डिंग वो देख लेते थे पहले कि किस तरह का आपका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब पोजीशंस दी जाती थी जो आपका इंटरेस्ट है। पर ये अब जनरल वे में पूछ लिया जाता है, तो कंपनी ये टेस्ट आजकल नहीं लेती है। देन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ओके, देन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होता है, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट are called for interview. To conduct the first interview, the panel of expert is called. Okay, so the consultant who are specialized in these fields are asked questions from the candidate to test his professional and specialized knowledge related to the job. Okay, so here what will happen, some expert will come, they are going to take your interview and they are going to check whether you are having some special kind of knowledge or not. So all these people are expert and the expert panel will select you. तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट पैनल आपको सिलेक्ट कर रहा है वो एक एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू रहता है, जब ये तभी होता है जब बाकी टेस्ट आप पास कर लेते हो, प्रिलिमिनरी एंड देन आफ्टर दैट जो दूसरा वाला है आपका टेस्ट, यानी कि टेक्निकल टेस्ट या फिर आपका ट्रेड टेस्ट, इस तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट, ये पास करने के बाद आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेता है। और उस टाइम जो भी आता है वो एक्सपर्ट रहता है, इसी काम के लिए एक्सपर्ट, वो बिल्कुल आपको हर तरह से चेक करेगा कि आप कैसे हो, किस तरह से आप काम कर पाओगे, और उसके बाद ही आपको पैकेज ऑफर वगैरह ये सब किया जाता है। नाउ चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। रेफरेंस और बैकग्राउंड कब चेक किया जाता है, सी आपने अगर कुछ भी चीज़ लिख रखी है आपके रेज्यूमे पे तो वो आपका पहले तो वहाँ से चेक करेंगे। सेकंड थिंग, एप्लीकेशन जो कैंडिडेट लाता है, ओके, सो इन द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट इज आस्क्ड टू गिव द नेम ऑफ टू रेफरेंसेस। तो यहाँ पे रेफरेंस आपको देना पड़ता है। लाइक आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए तो आप वहाँ पर किसी दो जनों के रेफरेंस दे दो या फिर किसी एक जने का ही रेफरेंस दे दो, मतलब आप उसको जानते हो। तो रेफरेंस चेक करते हैं, आप उसका एम्प्लॉय का नाम लिख लो, अगर आपका फ्रेंड वहाँ काम करता है उसका एम्प्लॉय आईडी आपके रेज्यूमे पे लिख दो। वो जाके उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि रियली ये आपको पहचान के थ्रू आया हुआ है क्या। तो रेफरेंस आपका चेक किया जाएगा, जिसका भी आपने नाम लिखा है उससे पूछेंगे कि आप इस व्यक्ति को जानते हो, डू यू नो दिस काइंड ऑफ पर्सन। अगर उसने येस बोल दिया तो कंपनी आपको सेटिस्फाई हो जाती है कि ठीक है रिकमेंड करके आया हुआ है, रेफरेंस के थ्रू आया हुआ है, तो ठीक है आपको थोड़ा सा वैल्यू मिलता है वहाँ पे। रेफरेंस नहीं भी है, नहीं भी दिया है तो भी चलेगा। वो आपको, अगर आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय, आप बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय साबित हो सकते हो कंपनी के लिए, देन डेफिनेटली दे विल शो देयर इंटरेस्ट इन यू। इट इज़ नॉट लाइक कि रेफरेंस होना चाहिए, बट इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ थिंग कि रेफरेंस से आपको थोड़ा फ़ायदा मिलता है। ओके, आपको कोई रिकमेंड करता है, रेफर करता है तो उसका थोड़ा वेटेज मिल जाता है। So if the candidate qualifies the interview, then the organization prefers to check with the reference about the personal character of the candidates. ओके, तो यहाँ पर वो पूछेंगे कि कैसा है, कैसा काम करता है, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में है, फ्रेशर है, कर लेगा कि नहीं। तो दे विल सिंपली आस्क अबाउट द डिटेल्स ऑफ यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रेफरेंस, उस पर्सन से आपके बारे में पूछेंगे। नाउ इसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन डिसीजन लेंगे। वो सिलेक्ट क्या करेंगे, द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट, रेफरेंसेस वगैरह सब यहाँ पे रेफरेंस टेस्ट वगैरह उसका स्कोर चेक करेंगे और उसके बाद इस सिलेक्शन का डिसीजन लेते हैं। तो मैनेजर्स दे विल प्रिपेयर दिस लिस्ट एंड द मैनेजर सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट। जो सबसे ज़्यादा बेस्ट कैंडिडेट है उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। देन मेडिकल एग्जामिनेशन, एक बार सिलेक्ट हो गए तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है, सी इन कंपनीज का किसी ना किसी हॉस्पिटल के साथ में टाइप होता है, तो वहाँ पर वो आपको सेंड करते हैं। तो एक्सरे होता है, ईसीजी होता है, चेक करते हैं कि आप फिट हो कि नहीं, आप में कुछ खामी है लाइक आई साइट वीक है या फिर आपको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है, ऑल दिस थिंग्स आर चेक्ड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखते हैं, चेक करते हैं कि वेदर यू आर फिजिकली फिट और नॉट टू डू द वर्क। अगर आप अनफिट घोषित कर दिए जाओ तो सपोज यू आर डिक्लेयर्ड अनफिट, देन यू कैन नॉट वर्क इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। ओके, नॉर्मल आईसाइट अगर वीक है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो कंसिडर कर लेती है कंपनी। आईसाइट से कुछ नहीं है, यू कैन वेयर योर स्पेक्टिकल्स, आप अपने चश्मे पहन सकते हो और वहाँ पर काम कर लोगे, तो दैट इज़ नॉट द थिंग। अगर कोई क्रिटिकल इलनेस है उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, देन आफ्टर दिस व्हाट हैपन्स,
वो चेक करते हैं और वो जो हॉस्पिटल रहता है वो आपकी रिपोर्ट आपको नहीं देगा, वो सीधा किसको पहुंचाएगा, एम्प्लॉयर को जिसने उसको अपॉइंट कर रखा है, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए हो उसको पहुंचाएगा, वो आपको नहीं देगा वो रिपोर्ट, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस जॉब ऑफर, अब उनको पता चल गया मेडिकल एग्जामिनेशन में भी आप फिट हो, तो आपको क्या करेंगे, ऑफर करेंगे जॉब। तो जॉब ऑफर का एक लेटर आपको मिलेगा यहाँ पे। तो कैंडिडेट हु क्लियर दिस मेडिकल टेस्ट गिवन जॉब ऑफर थ्रू द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, ओके। So in this letter, the letter joining date, terms and condition of the job, etc. are mentioned. Generally reasonable time is given to the candidate to join the organization. अब यहाँ पर क्या होता है, वो आपको जब ऑफर करेंगे जॉब्स वगैरह, तो उसमें क्या लिखा रहेगा, इट विल बी लाइक सैलरी, टर्म्स एंड कंडीशन, नियम और शर्तें रहती है जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कंपनी का, उस पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हुई रहेगी, ओके। और उसमें वो क्या करेंगे, वो आपको एक टाइम पीरियड देंगे कि आप सोच लीजिए और उसको एक्सेप्ट करके दे दीजिए, ओके। सो बेसिकली ईमेल पे भी आता है कि आपको एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी है, शाम तक का टाइम देंगे, आपको थोड़ा टाइम देंगे सोचने के लिए, और ऑफर करेंगे कुछ पैकेज वगैरह, तो उस पर सोच के अगर इफ़ यू थिंक दैट पैकेज इज़ गुड, पैकेज अच्छा है, ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन रिजेक्ट, ओके। सो यू विल हैव टू आंसर ऑन दैट ईमेल, उस ईमेल पे आपको जवाब देना पड़ता है जो कंपनी की तरफ से आपको आया हुआ होता है। देन द सिक्स इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। So when candidates accept the job offer, it refers to the signing of contract of employment. While signing the contract of the employment, the employer and the candidates exchange certain documents. Okay, so the common consent of the contract of the employment are job duties, responsibility, pay, allowance, hours of work, लीव्स रूल्स, डिसिप्लिनरी रूल्स, प्रोबेशन पीरियड एक्सेट्रा। तो जब जॉब ऑफर लेटर मिलता है तो ये इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है, जॉब ऑफर किया जाता है, आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आपको देखा जाएगा, आपको सामने आपको जब मिलेगा पेपर में हार्ड कॉपीज में, आप उसको पढ़ो, टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपको ठीक लगती है आप ज्वाइन करो, साइन करके दो, क्योंकि उसमें पे, अलाउंसेस, क्या क्या आपको पैसा मिलेगा, किस तरह से आपको फैसिलिटी मिलेगी, लीव्स, छुट्टियाँ कितनी रहेंगी, आपकी रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन उस पर लिखी है, तो अच्छे से पढ़ लो, टाइम देते हैं और फिर अच्छा लगता है तो उसको साइन कर दो। नाउ दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय ईमेल, आजकल कंपनियां ईमेल पे भी भेजती हैं इस चीज़ को, ओके। तो जॉब ऑफर का तो आपको बोलते हैं कि आप जल्दी से इन दोनों चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं बुक में, बट कंपनीज कैसे काम करती हैं, कंपनी दोनों चीज़ों को बस आपको एक फॉर्मेट दे देंगे और आपको उसमें पढ़ना है, उसको ही बोलते हैं जॉब ऑफर। आपको एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो पॉइंट है वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसमें, आप पढ़ो उसको, क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे एक्सेप्ट करने, तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ ईमेल पे जवाब दे दिया, जब आप जाओगे कंपनी में तो आपको बुलाएंगे वापस और आपके सामने एक कागज़ रखेंगे, दे विल पुट सम पेपर्स इन फ्रंट ऑफ यू, और वही होता है कॉन्ट्रैक्ट, आप उसको भी पढ़ोगे वहाँ पे, उसके लिए भी टाइम मिलेगा और उसको आप साइन करके दोगे, एक कॉपी कंपनी के पास रहेगी, एक आपके पास रहेगी ओरिजिनल कॉपी। उसका मतलब ये है कि आपने कंपनी ज्वाइन कर ली, ठीक है। सो ये सिलेक्शन का टोटल प्रोसेस हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं फ्लो चार्ट में भी दिया हुआ है, ओके। नाउ in next part we will be doing this training and development. Till then, thank you.